Good morning to all of you once again. But if any doubt is there in question number 6 that we were doing in the previous period, then you can ask the doubt. If any kind of doubt is there in question number 6, then you can ask. Otherwise, we will start with exercise 6.2. 6.1 में last question में if any doubt is there, then you can ask. Okay, fine. Then we are starting with exercise 6.2. Before that, some important concepts are again there for the lines which are parallel and the transversal. Let us discuss quickly that concepts. First of all, we are having a transversal. Let us suppose I'm having this pair of lines L and M, and a third line is intersecting it in this way. Then we will say कि line जो है which intersects these two or more lines at distinct points, जो इनको इन अलग अलग points पे intersect कर रही हैं. A line यानी कि हम N के बारे में बात कर रहे हैं, which intersects two or more lines, यानी कि we are talking about L and M. N जो है यहाँ पे L को भी intersect कर रही है, M को भी intersect कर रही है. This point is P and this is Q. At two distinct points P and Q. So that is a transversal to L and M. Same way में we can draw one line. Let us suppose this is S. तो एक line में और draw कर सकती हूँ. Same way में इनके बीच में we can draw infinite lines, या इसको extend करके मैं नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ lines draw कर सकती हूँ. तो N जो है यहाँ पे this is the transversal. ये आपने किया हुआ है concept. Then we are having parallel lines. Parallel lines में what we have, they are always equidistant from one another and they never intersect. ये हमेशा एक दूसरे से equidistant होते हैं, means इन दोनों किसी भी point का distance देखें तो that will be mute yourself. Ashmit, you also. So हमारे पास अगर पैरेलल लाइंस गिवन है तो पैरेलल लाइंस में कहीं पे भी कोई पॉइंट हम इनके ऊपर ले लें तो वो पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होता है दिस डिस्टेंस विल ऑलवेज बी इक्वल. अगर ये यहाँ पे मैंने डी से डिनोट किया है डिस्टेंस, तो कहीं पे भी मैं डिस्टेंस ले लूं तो दैट विल ओनली बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वी आर टॉकिंग अबाउट. और ये लाइंस हम जितनी मर्जी इधर एक्सटेंड करें, जितनी मर्जी इधर एक्सटेंड करें, और टू दिस साइड इफ वी एक्सटेंड इनफाइनाइटली एक्सटेंड करने पे भी दे विल नेवर इंटरसेक्ट. पैरेलल लाइंस कभी भी जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करती है. देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग, जब एक ट्रांसवर्सल जो है इंटरसेक्ट करती है दो पैरेलल लाइंस को इस तरीके से, तो हम जो है कई पेयर ऑफ इक्वल एंगल्स जो है वो हमारे फॉर्म होते हैं. ऑलरेडी डन कि आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, या फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, या ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो गए, या जो ये एंगल्स हैं ये सारे आपके इक्वल होते हैं. देन को इंटीरियर एंगल्स जो है उनका सम आपका 180 डिग्री होता है. तो ये सारा अभी हम एक बार रिकॉल करेंगे. मान लो मुझे ये दो लाइंस गिवन है L एंड M. दिस इज द ट्रांसवर्सल N. अब जब मैं इनमें बात करूंगी तो मैं एंगल्स की नेमिंग दे देती हूँ 1, 2, 3 एंड 4. इधर मैंने नेम 5, 6, 7 and 8. Now you will tell me the pair of corresponding angles. One by one you will answer. Corresponding angles here. Angle 2 and equals to angle 6. Angle 2 and angle 6 are corresponding angles. Very good. अब next pair कोई और बच्चा बताएगा मुझे. Angle 1 and angle 5. 1 I said. Not in this way. Angle Yes. 1 and angle 5. बच्चे दिया, you mute yourself. आपकी टर्न हो गई है. Now first Lavlina, then Panika, then Arshri. चलिए Lavlina. Ma'am, angle 3 and angle 7. Angle 3 and angle 7. Next किसकी टर्न है?
पानिका? यस, नेक्स्ट पेयर बच्चे, अनम्यूट करो अपने आप को. Yes, ma'am. Angle 4 and angle 8. Angle 4 and angle 8, very good. Next, Arshpreet, Angle 1 and angle 5. Arshpreet, your name is okay. After this, Ashmit, angle 1 and angle 5. Okay. Is there any other corresponding angle over here? Is there any other pair, Ashmit? Your hand is still raised. You can unmute yourself. No, ma'am. Okay. Now you will tell me the alternate interior angles. One pair बताओ जल्दी से. मुझे ना गर्ल्स का रिस्पॉन्स ज्यादा मिलता है इस क्लास में बॉयज से. चलिए, alternate interior angles बच्चे. Angle 2, angle 3, angle 4. चल बच्चे, अब मैं बॉयज से थोड़ा सा रिस्पॉन्स लूं जरा. बॉयज क्यों पीछे रहे? यस अश्मित, एनी पेयर बच्चे? इंटीरियर एंगल्स बताने हैं मुझे. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर मतलब जो इन दोनों लाइंस के बीच में आएंगे. यू कैन ट्राई बच्चे. नहीं भी समझ आ रहा, समटाइम्स होता है, अगर एकदम हमें कोई पूछ लेता है, आंसर नहीं स्ट्राइक करता दिमाग में, यू कैन ट्राई, नो प्रॉब्लम. यहाँ कौन सा मैं आपको नंबर दे रही हूँ? मैम बेटे ये दो मेरे पास पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है. दिस वन इज द ट्रांसवर्सल. अब मुझे इसके इंटीरियर एंगल्स बताने हैं आपने कौन से. इंटीरियर मतलब जो इनके लाइंस के अंदर की तरफ आएंगे. 4 एंगल्स आ रहे हैं, 3, 4, 5, 6. अब इसमें से इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन से हैं? ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ के. अगर मैंने ये लिया, इसको छोड़ दिया, तो इसका ऑल्टरनेट क्या बना? 3 के साथ 5. अब सेकंड आप बताओ मुझे पेयर. 4 का ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन सा बनेगा? 6. एंगल तो बोलने ही नहीं देती गर्ल्स, है ना. देख लो बॉयज, आपकी क्लास की गर्ल्स का हाल, आपको बोलने नहीं देती है. नाउ यू हैव टू टेल. बॉयज में आई स्टिल कांट सी एनी अदर हैंड. ठीक है, फिर मैं पूछती हूँ. हरनूर सिंह, अब आप मुझे ऑल्टरनेट एंगल्स बताइए. एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ, पैरेलल लाइंस से बाहर एंगल्स हैं 1, 2, 7, 8. 1 का बताइए एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? हरनूर. may I answer? 1 and 7. 1 का ये बोला कौन था? ये तो कोई और ही बोल रहा है मेरे ख्याल से, कि हरनूर ने बोला है. यस, हरनूर ने 7. बोला. ओके ओके ओके. 1 की कॉरेस्पॉन्डिंग बच्चे 7. वेरी गुड. 1 का ऑल्टरनेट 7. एंगल देखो, एक्सटीरियर एंगल, तो दैट विल बी 7. अब 2 के साथ भी आप ही बताओगे बच्चे. हरनूर. Ma'am, 8. वेरी गुड. बॉय. हरसिमरन, विल यू ट्राई? अब आपने मुझे को इंटीरियर एंगल्स बताने हैं. हरसिमरन और एनीवन एल्स वॉलंटियर बॉयज में से को इंटीरियर एंगल्स. वत्सल, विल यू ट्राई? Is he there? Yes, he is there. Vatsal. Ma'am, angle 4 or angle 5. Angle 4 and angle 5. Very good. And अब मैंने ये Ma'am, ठीक लिखा है, इक्वल टू 5 मैंने ठीक लिखा है बेटे. 1 and angle 4. Yes, ma'am. Angle 4 equal to 5. Is it correct for co-interior angles? Yes, ma'am. क्यों, क्या होते हैं co-interior angles? Ma'am, अंदर वाले angles. अंदर वाले तो हो गए, they are on the Oh, same ma'am, 1 side. or 5. 1 or 5. 1 और 5 तो बच्चे कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएंगे हमारे. These we have already written. मैंने आपको बोला co-interior angles, आपने मुझे 4 और 5 दिया. That answer is correct. But Yes, ma'am. co-interior इक्वल होते हैं. क्या प्रॉपर्टी होती है co-interiors की? क्या प्रॉपर्टी होती है co-interiors की?
वो आपने ठीक बोला, पेयर ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इनसाइड द टू लाइंस, ये दोनों अंदर की तरफ मैंने ले लिए 4 और 5, ये ठीक है। बट इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? गर्ल्स कैन गिव द आंसर इफ दे नो। मैम जिनका सम 180 हो। यस, वेरी गुड। जिनका सम 180 हो तो 4 + 5 प्लस इक्वल टू, आएगा। यहाँ पे हम ले लेंगे 4 + 5 इज इक्वल टू 180। वेरी गुड। अब सेकंड बताइए, सेकंड पेयर ऑफ को इंटीरियर। मैम एंगल 3 and angle 6। प्लस जल्दी एंगल से बताइए, बॉयज Angle पीछे 3 and 6. एंगल 3 and 6 का सम विल बी 180 डिग्री। चलो साथ ही अब फिर कंपटीशन कर लेते हैं, मुझे ज्यादा रिस्पांस बॉयज की तरफ से मिलेगा कि गर्ल्स की तरफ से मिलेगा। बट ये मेरे पास डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए कि क्लास में शोर हो जाए। अब आगे मैं देखूंगी कि पहले मुझे किससे जवाब मिलता है। बॉयज थोड़ा सा अटेंटिव हो जाओ बच्चे। देखो दोबारा से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं हमारे, ये आपकी अगर पैरेलल लाइंस गिवन है तो सेम साइड पे आप लेके चलते हो एक एंगल का गैप लेके। 2 and 6 आर कॉरेस्पॉन्डिंग, 1 and 5 आर कॉरेस्पॉन्डिंग, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग सेम साइड पे 7 है, देन 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग 5 छोड़ दिया 8 है। तो 2 = 6, 3 = 7, 4 = 8, 1 = 5। जब मेरे पास ऐसे 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होता है, 1 ट्रांसवर्सल होती है, तो टोटल 4 एंगल्स जो है मेरे पेयर्स, 4 पेयर्स बनते हैं जो कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं। एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, तो ये बीच में हमने =2 का साइन लगा दिया। आफ्टर दैट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इंटीरियर और एक्सटीरियर किसका देखते हैं? लाइंस का। अगर लाइंस के अंदर की तरफ ले रहे हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर कौन कौन से मतलब हैं हमारे अभी एंगल्स हम देखें तो 3, 4, 5 and 6, ये 4 एंगल्स हैं अंदर की तरफ। तो 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि ऑल्टरनेट है मींस एक छोड़ के चलोगे, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 6 छोड़ दिया 5 है, तो 3 के इक्वल 5। 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 छोड़ा 6 है, या 4 के ऑल्टरनेट 3 छोड़ा तो 6 है, या 4 के ऑल्टरनेट 5 छोड़ा तो 6 है, तो 4 के इक्वल 6 आ गया। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज अगेन इक्वल। एक्सटीरियर एंगल्स, ये लाइंस है, लाइंस के बाहर की तरफ वाले आएंगे। सो दिस इज 1, दिस इज 2, 7 and 8। 1 के ऑल्टरनेट 8, 7, तो 1 = 7। अगर इधर से भी लोगे तो 1 के ऑल्टरनेट 2 छोड़ा तो 7, तो 1 के ऑल्टरनेट एक्सटीरियर 7 बनेगा। 2 के ऑल्टरनेट 1 छोड़ा तो 8, 2 के ऑल्टरनेट 7 छोड़ा तो 8, तो 2 के ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 8 बनेगा। देन वी हैव को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर मतलब को मींस एक साइड पे इकट्ठे, इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ। तो 4 और 5 को इंटीरियर है, 3 and 6 को इंटीरियर है। दीज आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इधर बोथ ऑन द राइट हैंड साइड और बोथ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे 4 और 5 है, राइट लेफ्ट हैंड साइड पे 3 and 6 है, तो 3 और 6 को इंटीरियर है, 4 और 5 को इंटीरियर है। को इंटीरियर में एंगल्स इक्वल नहीं लेने, दे आर सप्लीमेंट्री, उनका सम 180 डिग्री होता है। तो 4 + 5 180, 3 + 6 180, तो ये हो गए हमारे को इंटीरियर एंगल्स। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी जो आपने की हुई हैं। अब जो है फिर से इसको सुन लो। अगर एक ट्रांसवर्सल जो है वो, अब इसी का जो है कन्वर्स हम कर रहे हैं। इफ वी आर गिवन एनी 2 लाइंस, मुझे नहीं पता पैरेलल है या नहीं है, इफ आई एम हैविंग 2 लाइंस एंड 1 ट्रांसवर्सल, देन इफ द any pair of corresponding angles is equal, यानी कि अगर 1 5 के इक्वल, 2 6 के इक्वल, 3 7 के इक्वल, 4 8 के इक्वल अगर गिवन है, then we will say that L is parallel to M। अगर मुझे ये पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल गिवन है, 3 के साथ 7, 2 के साथ 6, 1 के साथ 5, 4 के साथ 8, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है तो आई विल से दैट द लाइंस आर पैरेलल। इसका उल्टा, इफ द लाइंस आर पैरेलल देन द पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये आपने रखना है। सेम वे में अगर मुझे पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ये इक्वल गिवन है, देन अगेन आई विल से दैट द 2 गिवन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। एंड सेम वे में इफ आई एम गिवन 4 + 5 = 180 और 3 + 6 = 180, तो मुझे ये पता है ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, और को इंटीरियर एंगल्स हमेशा किस में बनते हैं? जब द लाइंस आर पैरेलल। सो व्हेन any one of these condition is given, then we will say lines are parallel,
एंड इफ लाइंस आर पैरेलल, उसका कन्वर्स, अगर लाइंस पैरेलल गिवन है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर विल बी इक्वल एंड को इंटीरियर में सम ऑफ दीज टू एंगल्स विल बी 180 डिग्री। तो दोनों तरह से जो है आपका रिजल्ट आ सकता है। If anyone is having any doubt in this, then you can ask. Otherwise, I'm just starting with exercise 6.2, जिसमें हमारे यही वाले concepts जो हैं वो यूज होने हैं। अगर किसी को कोई बच्चे नहीं समझ आया कि कौन से एंगल्स हमारे इंटीरियर बन रहे हैं, कौन से एक्सटीरियर बन रहे हैं, then you can ask. हाँ जी बच्चे। मैम को इंटीरियर एंगल्स में एंगल 3 और 4 नहीं होंगे? नहीं बच्चे, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये आपकी ये ट्रांसवर्सल है। 3 और 4 स्ट्रेट एंगल जरूर बन रहा है, 3, 4 में आपका ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है, इनका सम भी नो डाउट 180 डिग्री है, बट दिस इज फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द को इंटीरियर, तो दे आर, ये हमारी ट्रांसवर्सल है, दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो 3 के साथ 6 लोगे, 4 के साथ 5 लोगे, इफ वी आर गिविंग द रीजन दैट दे आर को इंटीरियर एंगल्स। अगर मैं लीनियर पेयर देन लीनियर पेयर में 3 के साथ 4 है, 5 के साथ 6 है, बट लीनियर पेयर में ये दोनों पैरेलल का कोई रोल नहीं है, वो सेम आपके एडजेसेंट एंगल्स का रोल है उसमें। ठीक है, तो जब हम पैरेलल लाइन की बात कर रहे हैं तो अगर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में है तो 3 और 6 को इंटीरियर है, 4 और 5 को इंटीरियर है। जब आप ऐसे कह रहे हो 3 और 4 की बात कर रहे हो तो दिस इज फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। इस वाले पेयर का इससे कोई लेना देना नहीं है, मीन्स अगर मैं ये लाइन हटा भी दूंगी यहाँ से तब भी इनका सम 180 आए। लेकिन जब हम को इंटीरियर की बात कर रहे हैं तो को इंटीरियर के केस में मेरे पास यहाँ ये एंगल्स होने चाहिए। सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। यस मैम, थैंक यू मैम। फाइन बच्चे, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हमें जो है वो एंगल्स निकालने हैं और डिफरेंट जो है प्रॉपर्टीज यूज करेंगे हम इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करेंगे। In this again we are given a figure and we are to find the values of x and y. x और y की values निकालने के बाद again we are to show that AB is parallel to CD. तो ये दो चीजें हमें इसमें करनी है। सबसे पहला हमें करना है x और y की values निकालनी है और फिर शो करना है कि AB और CD आपस में parallel है। So this figure is given to us. This is AB. This is your exercise 6.2. Question number 1. And then second CD I am given. Then I am given a transversal over here. This angle is 50. This is X. Then this is Y. And this is 100. अब मुझे दो चीजें शो करनी है, दो चीजें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले x और y एंड देन मुझे सेकंड क्या शो करना है, AB जो है दैट इज पैरेलल टू CD। तो पहले मैं x और y की वैल्यूज निकाल लूंगी, फिर दो लाइंस को पैरेलल करने के लिए या तो मैं पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल शो कर दूंगी या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स या फिर जो आपका को इंटीरियर का सम था 180, इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी हम यूज करके उसको शो कर दूंगी। अब अगर मैं गिवन फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो यहाँ पे जो ये है मेरी दिस वन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन और ये एंगल 50 और x दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। लीनियर पेयर में मुझे पता है कि लीनियर पेयर में दोनों का सम कितना होगा 180। तो अगर एक एंगल मुझे 50 गिवन है तो एंगल x की वैल्यू क्या आ जाएगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल x? 130. 130 डिग्री। वेरी गुड। अब ये हाँ जी Corresponding angles. यस वो अभी बाद में शो करेंगे बच्चे। ये 130 आ गया। अब y को लो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं तो y और 130 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हम डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, हाँ वो शो करने के लिए कि AB इक्वल टू CD है वो हम यूज कर सकते हैं, पर पहले हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है। x की वैल्यू के लिए ये वाली लाइन ली, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, एक एंगल 50 है तो दूसरा 180 में से माइनस करके निकलेगा, यानी कि x की वैल्यू आ गई 130। अब ये y और 130 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं क्योंकि ये लाइंस आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो y की वैल्यू आ गई 130। अब x और y दोनों की वैल्यू 130, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स,
तो ए बी पैरेलल सी डी। या फिर आप ऐसे ले सकते हो, एंगल एक्स मेरा 130 आ गया, तो ये वाला और ये वाला एंगल जो है इक्वल है, बट दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। कोई भी एक कंसेप्ट यूज कर लो, चाहे आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कर लो या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का कर लो, इसको पैरेलल शो करने के लिए। अब इसको देखो लिखना कैसे है। सो सॉल्यूशन हम इसका कर रहे हैं फ्रॉम द फिगर वी सी या वी कैन ऑब्जर्व, कुछ भी आप लिख सकते हो। जो आपका एंगल 50 डिग्री है और एक्स जो है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज बाय लीनियर पेयर एक्सियम, या ओनली यू कैन राइट डाउन लीनियर पेयर। अब यहाँ से मेरा एंगल एक्स की वैल्यू आ गई 180 माइनस 50, दैट इज 130 डिग्री। अब ये जो है y की वैल्यू निकालनी है मुझे, x की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब y के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो y इज इक्वल टू 130 डिग्री। 130 डिग्री क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये वाला और ये वाला दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब x और y की वैल्यूज आ गई मेरे पास, बट हम यहाँ क्या लिखेंगे, बट x एंड y आर, ये दोनों दीज आर इक्वल, x की वैल्यू भी 130, y की वैल्यू भी 130, तो यहाँ से आ गया, यहाँ से आप पहले ये लिखो, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू y। अब x इक्वल टू y, दोनों की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 130 डिग्री। तो दीज आर बट x एंड y आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जब आपके इक्वल होते हैं तो दिस इम्प्लाइज ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज, या दिस इम्प्लाइज कर लेना, जैसे मर्जी लिख लेना, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। पहले हमने दोनों की वैल्यू इक्वल शो कर दी, अब वैल्यू इनकी इक्वल आ रही है, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जब इक्वल होते हैं देन वी से दैट दीज लाइंस आर पैरेलल। सो एक बार फिर से इसको देख लो, गिवन फिगर में वी आर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई and we are to show that AB is parallel to CD। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कंसेप्ट लगाया लीनियर पेयर का। ये आपकी स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन में एक एंगल मुझे 50 गिवन है, दूसरा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 180 में से माइनस कर देते हैं, तो x की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। y और 130 दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो y की वैल्यू भी 130 आ गई। अब x भी 130, y भी 130, ये दोनों इक्वल आ गए, लेकिन ये है क्या, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जब भी इक्वल गिवन होते हैं तो ये जो आपकी दो लाइंस होती हैं दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये हमें शो करना था, दिस वी हैव शोन। And now moving on to question 2, if any doubt is there in any step of this question number 1, then you can ask, otherwise moving on to question number 2। हाँ जी बच्चे, एक्सक्यूज मी मैम, यस बेटा। मैम y की वैल्यू निकालने के लिए मैम ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी तो लगा सकते हैं। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर लगा सकते हो, बट हमें लाइंस पैरेलल नहीं ना गिवन बच्चे, हमें इस कंसेप्ट वो लगाना है जो हमें गिवन है। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर आपका सिर्फ जब पैरेलल गिवन होती है लाइंस आप तब लगाते हो, अभी मुझे लाइंस पैरेलल नहीं गिवन है, तो फिर इसलिए मुझे यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का कंसेप्ट लगाना पड़ा। अगर मुझे गिवन होता कि ये दोनों पैरेलल हैं, देन ओनली आपके जो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं वो आप ले सकते हो कि इक्वल है, तो तब आप लेके चलते हो। वैसे भी y आपका ये अंदर की तरफ गिवन है लाइन के, तो ये एक्सटीरियर नहीं बनेगा, ठीक है, तो आप एक्सटीरियर वाला कंसेप्ट नहीं लगा सकते, आप ये इसी के साथ लेके चलो। अगर ABCD के पैरेलल, हाँ जी बच्चे, मैम y के लिए मैम वर्टिकली ऑपोजिट और एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर भी चलेगा ना, x के साथ में मैम कर लेंगे जब 130 उसका निकलेगा। ये वही मैं आपको बता रही हूँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर में ये एंगल्स इक्वल कब होते हैं, जब ये पैरेलल गिवन होते हैं। मुझे ये अब यहाँ पे पैरेलल गिवन नहीं है, आई हैव टू शो दिस की AB पैरेलल CD, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर का कंसेप्ट लगा के आप y को 130 नहीं शो कर सकते कि x और y ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। पहले हम y की वैल्यू भी 130 शो करेंगे, फिर हम लिखेंगे कि है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, नो डाउट। बट अगर मान लो मुझे लाइंस ऐसे गिवन हो,
ठीक है, फिर ये दोनों पैरेलल नहीं है, बट अभी के लिए ये दोनों हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंगल 1 और 2 आपके इक्वल हो जाते हैं, देन ये लाइंस आपकी पैरेलल बनती है। अगर ये आपके नॉट इक्वल हैं तो ये लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। अब अगर मैं ऐसे दो लाइंस ड्रॉ कर लूं, ये ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर लूं, तो अभी भी ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं विद डिफरेंट वैल्यूज। जब ये वैल्यूज सेम हो जाती है तब ये लाइंस आपकी पैरेलल होती है। जब ये वैल्यूज सेम नहीं होती तब ये लाइंस आपकी नॉन पैरेलल होती है, बट रहेंगे ये अभी भी अल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं और इंटीरियर में है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये रहेंगे। बट जब ये वैल्यूज आपकी सेम हो जाती हैं तब हम कहते हैं कि ये लाइंस पैरेलल है। तो इसलिए यहाँ पे आप y को नो डाउट कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, बट y हम डायरेक्टली 130 नहीं लिख सकते, क्योंकि मुझे नहीं पता ये पैरेलल है या नहीं है। अगर ये पैरेलल नहीं होंगी तो ये दोनों एंगल्स आपके अनइक्वल होंगे, जैसे यहाँ पे। गॉट इट बच्चे? यस मैम, थैंक यू। ओके बच्चे, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में अगेन गिवन अ, ये छोटी छोटी बातें हैं बच्चे, इनको ध्यान से समझ के करना है कि अगर हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल गिवन है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल गिवन है, या ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल गिवन है, देन वी विल से लाइंस आर पैरेलल। या इसका उल्टा गिवन हो, अगर मुझे गिवन है लाइंस आर पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल गिवन है, देन आई विल से कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, देन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होंगे। तो इक्वल के लिए लाइंस का पैरेलल होना बहुत जरूरी। अगर लाइंस पैरेलल नहीं है देन दे वोंट बी इक्वल, या अगर इक्वल है Excuse तो me, लाइन। ma'am. हाँ जी बच्चे, मैम पिछले क्वेश्चन में हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से नहीं कर सकते सम? एक मिनट, कौन कौन से एंगल्स बच्चे आप कॉरेस्पॉन्डिंग लोगे? ये मुझे 50 गिवन था, मैंने ट्रांसवर्सल रिवर्स डायरेक्शन में ये इन दो को कह रहे हो आप लेके पैरेलल के लिए? हाँ, Yes, पैरेलल ma'am. के लिए दोनों को आप ले सकते हो, क्योंकि ये वैल्यू मुझे डायरेक्ट गिवन है। यू कैन यूज दिस कि एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको आप नेम दे देना एंगल 1, ये नेम दे दिया इसको, तो एंगल x एंड 1 बोथ आर इक्वल टू 180 डिग्री, बट दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड व्हेनेवर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, लाइंस आर पैरेलल। आप चाहे कॉरेस्पॉन्डिंग से प्रूव कर दो, चाहे आप ऑल्टरनेट से प्रूव कर दो, बट x और y वैल्यूज दोनों की निकालनी ही पड़ेगी। ठीक है? ओके मैम। मैम नेसेसरी तो नहीं है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को मेंशन करना है? नहीं नहीं, जरूरी नहीं। ओके मैम। आपको पैरेलल के लिए आप इनमें से कोई भी कंसेप्ट यूज कर लो जो एप्लीकेबल है यहाँ पे, चाहे लाइंस एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज कर लो अगर बनती है तो, चाहे आप ऑल्टरनेट इंटीरियर जैसे मैंने करवाया या जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग आप पूछ रहे हो, इन एनी वे यू कैन। कंसेप्ट मतलब वो आपका होना चाहिए एप्लीकेबल। अब क्वेश्चन नंबर 2 में वी आर गिवन फिगर गिवन है, वी आर हैविंग 3 लाइंस AB, CD एंड EF। ये 3 लाइंस मुझे गिवन है, 1 ट्रांसवर्सल इज गिवन, दिस इज AB, CD, E एंड F। मुझे पैरेलल गिवन है, AB CD के पैरेलल, CD EF के पैरेलल, तो इट मींस ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। AB पैरेलल CD, CD पैरेलल EF, तो दिस इंप्लाइज AB पैरेलल है CD के, CD पैरेलल है EF के, तो तीनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। उसके बाद एंगल्स गिवन है, दिस इज एंगल X, दिस इज एंगल Y, और थर्ड मुझे गिवन है Z। अब वो क्या कह रहे हैं कि एंड Y रेशियो Z इज 3:7। Y और Z एंगल्स की रेशियो मुझे गिवन है 3:7। फाइंड X, मुझे X की वैल्यू फाइंड आउट कर। अब देखो मेरे पास AB पैरेलल CD था, CD पैरेलल EF ये मुझे गिवन था, तो यहाँ से मैंने ये कंडीशन निकाल। अब AB और EF आपस में पैरेलल हो गई, तो X और Z, AB और EF पे कंसेंट्रेट करो, अब CD को बीच में से भूल जाओ। और ये ट्रांसवर्सल हो गई,
ये एंगल मेरा x है और ये एंगल मेरा z है। अब x और z जो अगर आप देखो तो x और z आपके कौन से एंगल्स बन रहे हैं? alternate exterior angles, Alternate alternate exterior इंटीरियर angle, एंगल, are these exterior और interior lines parallel के बीच में है कि बाहर है? interior interior, अंदर की तरफ है ना, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से क्या इंप्लाई कर रहे हैं कि ए बी जो है अगर सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, तीनों पैरेलल हो गए। इसमें से मैंने ये कंसेप्ट उठाया कि ए बी और ई एफ आपस में पैरेलल है, तो एक्स और जेड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। पैरेलल लाइंस जब गिवन होती हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपके इक्वल होते हैं। तो एक्स और जेड आपके क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए। अब जो है मुझे y रेशियो z जो है वो 3:7 गिवन है, तो यहाँ पे मैं लेट कर लूंगी y इज इक्वल टू 3। अब x ऑलरेडी मेरे पास है तो x नहीं मानना, मैं कुछ और लेके चलूंगी, मैं a ले लूंगी। y को मैंने 3a ले लिया और z को मैंने क्या ले लिया, 7a। अब x किसके इक्वल मैंने शो किया, z के इक्वल। ये आप शो नहीं करोगे, ये मैंने समझाने के लिए बनाया, तो दिस यू नीड नॉट। ये चीजें आपने शो करनी है। पहले ए बी सी डी के पैरेलल, सी डी ई एफ के पैरेलल, तो ये आपस में पैरेलल हो गए। यहाँ से मैंने ए बी और ई एफ पे कंसंट्रेट किया, बीच वाली लाइन को छोड़ दिया, तो एक्स और जेड जो है वो आपके इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल होंगे, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर है। दूसरी तरफ y रेशियो z मुझे 3:7 गिवन है, तो कॉमन फैक्टर दोनों का मैंने a मान लिया, तो y हो गया 3a, z हो गया आपका 7a। यानी कि यहाँ से x की भी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 7a। x z के इक्वल है, z 7a है, तो x आ गया मेरे पास 7a। अब इधर देखो, AB और CD पैरेलल है, x और y कौन से एंगल्स बन रहे हैं इनके, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैं, तो x and co-interior y angles co-interior इंटीरियर angles, एंगल, यहाँ पे लिखेंगे बस, as AB is parallel to CD, therefore x plus y is equal to 180 degree। रीजन मेंशन कर co-interior angles। अब x मैंने कितना निकाला, 7a, y कितना है 3a, तो मेरे पास a की वैल्यू दी यहाँ से, तो 10a is equal to 180। a कितना आ गया मेरे पास 18। अब a मेरे पास 18 आ गया, तो x y z मैं निकाल लूंगी यहाँ से पुट करके। x कितना है आपका 7a, तो दिस इज 7 into 18, दिस इज 126। और y कितना है 3a, दैट इज 3 into 18, तो ये आ जाएगा 54 डिग्री। और z इज अगेन 7a, तो 7 into 18, दैट इज अगेन 126 डिग्री। उसने मेरे से फाइंड x पूछा था, तो ये वैसे कैलकुलेट ना भी करो तो चलेगा, यू नीड नॉट शो, इसको आप स्किप कर सकते हो। और x जो है मुझे उन्होंने सिर्फ उसकी वैल्यू पूछी थी, तो दिस इज माय आंसर। दोबारा देख लो इसको, गिवन फिगर में मुझे गिवन है ए बी सी डी के पैरेलल, सी डी ई एफ के पैरेलल। जब ये लाइन इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये आपस में तीनों पैरेलल हो गई। तो मैंने फर्स्ट कंडीशन में क्या किया, बीच वाली लाइन को छोड़ दिया, ए बी और ई एफ को, इसको भूल, ए बी और ई एफ को मैंने पैरेलल ले लिया। अब जब ए बी और ई एफ पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो एक्स और जेड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, तो दोनों इक्वल होंगे, ये इक्वल है। इधर मुझे y और z की रेशियो गिवन थी 3:7। जब भी रेशियो गिवन होती है हम एक कॉमन फैक्टर ले लेते हैं और उनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो कॉमन फैक्टर मैंने a ले लिया, तो y आ गया 3a, z आ गया 7a। अब इधर मैंने क्या शो किया कि x z के इक्वल है, तो x की वैल्यू z की वैल्यू पे पुट कर दी। यहाँ पे आप इसको 1 ले लो बेशक, यहाँ लिख लेना यूजिंग 1, तो बाद में कंफ्यूजन नहीं। तो मेरे पास x आ गया 7। दूसरी तरफ AB और CD पैरेलल गिवन है और x और y इनके को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। व्हेनेवर द लाइंस आर पैरेलल, को इंटीरियर एंगल्स का सम आपका 180 डिग्री होता है। तो x प्लस y 180 डिग्री। x की वैल्यू 7a पुट की, y की वैल्यू 3a पुट की, तो दिस इज इक्वल टू 180। 7 + 3a 10a इज इक्वल टू 180। a आ गया आपका 18,
ये हमने इसमें पुट किया तो x इज इक्वल टू 7 टाइम्स 18 दैट इज 126. x की वैल्यू पूछी थी तो यहाँ छोड़ दो, इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हो. दिस इज योर आंसर. So this was your today's lecture. Question number 3, 4, 5 and 6 we will do tomorrow. If any doubt is there in this, then you can ask. Otherwise, you can leave the meeting because your time is over. If anyone is any doubt, then you Ma'am, can unmute yourself and ask. हाँ जी बच्चे. Ma'am, which questions do we do done in fair notebook? In your homework, you are to do question number exercise 6.1 में you will do question number 2. Just a moment. Question number 2 you will do, question number 5 and 6. These 3 questions you are to do in your homework exercise 6.1, and from exercise 6.2 you are to do this second question. Okay, 4. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी. मैम इस चैप्टर का कोई इंट्रोडक्शन पार्ट लिखना है? That I will send. Yesterday I could. Today I will send. Okay. ओके मैम. मैम कैन यू सेंड द होमवर्क पार्ट्स प्लीज? Yeah, Also. definitely I will send. Okay, I will send. So And any ma'am, जो other? आपने अभी definitions करवाए मैम alternate interior angles की सबकी मैम वो भी लिखनी है फिर कॉप में? You need not write. You need not write. But वैसे आप उनको mention कर दोगे, 2 parallel lines draw करके इस तरीके से, और फिर ये ट्रांसवर्सल शो करके, जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 नेमिंग करके नीचे लिखा था, इन द यू विल राइट डाउन. ओके, बस ये कंसेप्ट क्लियर होना. ओके बच्चे. Any other doubt? So fine then, it's okay. I'm ending the meeting. Thank you. Have a nice day. And those who have seen the notebooks, they are. Yes, Ashmit, कुछ पूछना है बच्चे? No ma'am. Okay बच्चे, okay. Thank you then. You can leave the meeting. Have a nice day.